Hi friends, welcome to my channel I Studies. Let me discuss in this chapter. Our chapter name is Fundamental of Computer, Class 9, Information Technology 402. Information Technology 402. This is Akash. Or let me discuss in this lecture a Central Processing Unit. Today's topic is Central Processing Unit. What is the Central Processing Unit? It is made up of some components of CPU. It is made up of some components of CPU. ये कुछ components से मिलकर बना होता है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में. The CPU called as microprocessor. The CPU called as microprocessor is like the brain of the computer. We can say that in another word, the CPU is a microprocessor, that is the brain of a computer, like brain, है ना? Okay. Then CPU always work as a brain of a CPU. Brain always calculate the things and control our body parts. ठीक है? After that, it determines how fast your computer will run. ये भी डिटरमाइन करता है कि आपका कंप्यूटर जो कितना तेज है, कितना फास्ट है. That means we can say that some students have a great IQ and some students have a low IQ. So the best microprocessor always give a best and low microprocessor always give the low calculations. Okay. And speed, low speed. It carries out all calculations. ये क्या करता है? It carries out of all calculation. ये सारे calculations को करता है, takes decision, फिर decision लेता है and controls the working of all components of computer system. Components of all computer system के जितने भी components हैं उनकी working को क्या करता है? Control करता है. There is a some components of CPU. There is a some components of CPU. Number one is control unit. Number 2 is arithmetic logical unit. Number 3 registers and number 4 buses. There is 4 types of components of CPU. Number 1 is CU, ALU and registers and bus. तो let me discuss in this lecture. Please आप लोग सुनेंगे और लिखेंगे भी. तो हम सबसे पहले CU को डिस्कस कर रहे हैं कि कंट्रोल यूनिट आखिरकार होती क्या है. It is responsible for directing and coordinating most of the computer system activities. That means ये करती क्या है कि ये responsible होती है direct. क्या direct? ये coordinate करती है computer systems की activities के साथ. The CU does not execute instruction by itself. जो CU होता है वो कभी भी instructions को क्या करता है? अपने आप execute नहीं करता. ये execution का काम नहीं करता है. ये करता क्या है? It direct the other parts of the computer system what to do. ये देखता है कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स कर क्या रहे हैं, इस टाइम क्या कर रहे हैं. तो उन सब पार्ट्स को कंट्रोल करने का जिम्मा किसका होता है बेटा? कंट्रोल यूनिट का होता है. ठीक है. It determines the movement of electronic signal between the main memory and the arithmetical logical यूनिट. ओके. ये क्या करता है? ये डिटरमाइन करता है कि मेमोरी यूनिट और एएलयू के बीच में डिजिटल सिग्नल्स को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है. एएलयू और मेमोरी यूनिट के बीच में डिजिटल सिग्नल्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है. दैट्स इट. नेक्स्ट इज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट. द एएलयू परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस. This is always perform a arithmetical and logical function like addition, subtraction, multiplication and division etc. ये सब काम कौन करता है? अरिथमेटिकल फंक्शन और लॉजिकल फंक्शंस को कौन हैंडल करता है? अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट. ओके. After that, these comparison include greater than, less than, is equals to etc. ठीक है. ये जितने भी ऑपरेशंस करता है इस तरह के वो बहुत ही फास्ट करता है. ओके. नेक्स्ट इज रजिस्टर्स. What is registers?
a register is a special temporary storage. A register is a special temporary storage location with the CPU. ये CPU के अंदर एक टेम्पररी स्टोरेज का काम करते हैं. क्या करते हैं रजिस्टर? टेम्पररी स्टोरेज. टेम्पररी स्टोरेज का मतलब यू कैन से दैट a type of memory that is not stable. ऐसी मेमोरी जो कि स्टेबल नहीं है. तो ये रजिस्टर्स क्या करते हैं? टेम्परेरी स्टोरेज का काम करते हैं. टेम्परेरी स्टोरेज मतलब कुछ समय के लिए किसी डेटा को स्टोर करके रखना. द रजिस्टर्स आर यूज्ड टू क्विकली स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा that are being sent by the control unit and that have to be used immediately by the main memory. Okay. ये temporary storage registers जो होते हैं that is perform a task that is which data transfer from the control unit, it is immediately stored in the register. It is immediately stored in the register and sent to the memory unit and sent to memory unit. एंड आफ्टर दैट मतलब एक हिंदी में मैं अच्छे से अगर समझाना चाहूं तो रजिस्टर्स के देखो होता क्या है. सीयू यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पर बताता हूं एक सेकंड. देखिए सीयू और मेमोरी यूनिट के बीच में ये होते हैं रजिस्टर्स. होता क्या है, यहां से इंस्ट्रक्शन और डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को रजिस्टर्स के अंदर टेम्परेरी टाइप में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है. आफ्टर दैट मेमोरी यूनिट इज द परमानेंट यूनिट फॉर स्टोरेज. मेमोरी यूनिट जो परमानेंट स्टोरेज यूनिट होती है. इफ वी वांट द डेटा इज करेक्ट एंड वी नीड टू सेव इट, सो फिर क्या होता है? ये स्टोरेज डिवाइस से कहां भेज दिया जाता है? मेमोरी यूनिट्स के पास भेज दिया जाता है, जिससे कि ये परमानेंटली हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाता है. आफ्टर दैट हम चलते हैं बसेस. बसेस का मतलब यहां पर केबल से है. हम कह सकते हैं केबल्स. बसेस का मतलब केबल से है, वायरिंग से है. जितनी भी सीपी के अंदर वायरिंग होती है उन सबको हम बसेस बोल सकते हैं. तो यहां हम एक तरीके से और बोल सकते हैं द टर्म वाज रेफर टू द इलेक्ट्रॉनिक पाथवे. इलेक्ट्रॉनिक पाथवे मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक रास्ता. इलेक्ट्रॉनिक पाथवे थ्रू विच वाइड्स are transmitted between the various computer components, through which bits की मतलब हम क्या सकते हैं? bits is the smallest unit of memory. तो हम कह सकते हैं कि ये जो बसेस होती हैं वो क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉनिक पाथवे है थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन द वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स. तो वी कैन से दैट अ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक अ हार्ड डिस्क एंड सीयू. इसके बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो एक बस होगी बीच में, है ना. एक इलेक्ट्रॉनिक पाथवे होगा जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इनमें डेटा जो है वो बिट्स के रूप में ट्रांसफर हो रहा होगा. बिट्स के रूप में क्या हो रहा होगा? डेटा ट्रांसफर होगा. तो यही था आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पूरा फंडा एंड कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. थैंक यू सो मच. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अभी मदरबोर्ड और कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस. ये मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड ऑल्सो इनबिल्ट इन सीपीयू के अंदर ही होता है और मदरबोर्ड के अंदर ही ये सारा सर्किट बना होता है जिसमें प्रोसेसर भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी होता है और रैम भी होती है, बहुत सारी रजिस्टर्स भी होते हैं. ये सारी चीजें क्या होती है? मदरबोर्ड के अंदर होते हैं. तो मदरबोर्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अभी सबसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट और है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अलीगढ़ में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोगों को सिक्योर रहने के लिए लगातार अपने हाथों को धोते रहें साबुन से अच्छी तरह से. ग्लव्स, हैंड ग्लव्स यूज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हैंड ग्लव्स यूज करें. मास्क 100% पहने, कोई छूट नहीं है मास्क में. और बिना किसी जरूरी काम के
अपने घर से बाहर ना निकले। थैंक यू सो मच।